Hello students, in this video we are going to learn insertion in a sorted list or insertion in a list. Let us begin with the topic insertion in a list. After that we will perform the operation insertion of an element at the appropriate position in the sorted list. So insertion in a list. To insert an element in the list, we use the function insert, then index number and element required to be insert. For example, let us take, there is a list, let us say 10, 20, 30, 40, 50. Suppose I am asking you to insert an element at the second index, then you will write a dot insert 2. This is the index number, means at the second index. Suppose I want to insert 100, it means it will insert 100 is the element at the index number 2. If you write print A, then you will get answer 10, 20, and here 100, 30, 40, 50. Remember that list is dynamic data structure. So as soon as the new element is inserted at the position, rest of the element will shift towards right hand side. List, again I am telling, list in Python is dynamic data structure which grow its size whenever we insert a new element, and it shrink its size when an element is deleted from the list. So whenever the new element is inserted, rest of the element will shift towards right hand side. This is element at the index number 0, it is 1, it is 2. So here this is the index number 2, so 100 will be inserted at the second index, rest of the element will shift towards right hand side. 0, 1, 2. So in this way you can insert an element in the list. Now the task is that insert an element at its appropriate position in a sorted list. Suppose a list is given. Suppose this is a list. (10, 20, 30, 40, 50, 60). Suppose this is the list which is having element in sorted order. Sorted list I am assuming as ascending. Suppose if it is descending, then what will happen? I will tell you later. First I am considering the list as ascending order. Suppose this is the list A, in which a element, let us say element is 35. This 35 element is required to be inserted at its appropriate position. Now how we will do this? Question will ask you, define a function, let us say insert data, we name it as a function in which a list A and the element, let us say ELE, is passed as parameter to the function. Now the first task is to find out the
position or the index number where we will insert the element. Now how we will find out the index number? We will find out in this way. This 35, ये 35 क्या इससे छोटा है? नहीं. इससे छोटा है? नहीं. इससे छोटा है? नहीं. इससे छोटा है? Yes. So this is the index number. 0, 1, 2, 3. Now 3 is the position, 3 is the index number where the element is required to be inserted. So first we need to find out the position. हम कैसे find out कर रहे हैं? हमने compare किया किसे? एलिमेंट को. किससे? इस एलिमेंट से. ये एलिमेंट का मतलब क्या है? A of I. So we have compared ELE with A of I. और कंपैरिजन क्या किया हमने? क्या ये इससे छोटा है? ये क्या हो गया? ELE. और ये क्या हो गया? A of I. और छोटा मीन्स लेस देन इक्वल टू. तो हमने कंपेयर किया. इफ ELE इज लेस देन इक्वल टू A of I, तो फिर हमारी पोजीशन क्या हो गई? ये क्या है हमारी? इंडेक्स. सो हमारी पोजीशन क्या हो गई? I हो गई. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन. ये जो हमने कंपैरिजन किया ELE का A of I से, एक बार किया कि बार बार? हमने बार बार किया, बिकॉज लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट हैं. तो जो काम बार बार होता है वो कहाँ होता है? लूप के अंदर. दैट्स वाई वी हैव यूज द लूप. तो हमें पोजीशन पता करने के लिए सबसे पहले लूप लगाना पड़ेगा. क्यों? हमें ELE का कंपैरिजन A of I से बार बार करना है. जो काम बार बार होता है वो लूप के अंदर होता है. इसीलिए हमने क्या किया? एक लूप लगाया. फॉर I इन रेंज लेंथ A. फिर हमें चेक करना है. चेक करने के लिए हमने इफ लगाया. इफ एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू A of I. जैसे ही एलिमेंट A of I के इक्वल है तो हमारी पोजीशन क्या हो गई? I. और ब्रेक. हमने यहीं पर लूप रोक दिया. ब्रेक लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम लूप को यहाँ ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर ये यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है और आगे भी ट्रू है. इसीलिए हमें यहाँ पर एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना पड़ेगा. मीन्स एज सुन एज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड वी हैव टू ब्रेक द लूप. तो हमारा पहला काम हो गया. हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली. अब यहाँ पर एक टेक्निकल इशू है. सपोज ये एलिमेंट 335 की जगह 350 होता, तो फिर ये कहाँ लगता हमारा? तो फिर ये हमारा एंड में. एंड में क्या होता? एंड में अपेंड होता. अगर ये एलिमेंट सबसे बड़ा होता तो फिर ये एंड में अपेंड होता. तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई है कि नहीं हुई है? एक काम करते हैं, हम P की एक डिफॉल्ट वैल्यू रख लेते हैं. लेट अस से -1. कुछ भी रख लो इसे माइनस में. हम माइनस में क्यों रख रहे हैं? बिकॉज हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करी है. दैट्स वाई लूप हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा. इसीलिए हमने डिफॉल्ट पोजीशन माइनस में रख ली. अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे होते तो फिर हम पोजीशन माइनस में नहीं रखते, फिर हम पॉजिटिव में रखते. क्योंकि हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हमने डिफॉल्ट पोजीशन -1 ले ली. इसका मतलब क्या? ये एलिमेंट या तो ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या ट्रू नहीं होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर P के अंदर इंडेक्स आ जाएगा, हमें पोजीशन मिल जाएगी. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो P के अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यू -1 दे रखी है. इसका मतलब क्या? वो -1 की -1 रहेगी. नाउ आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, टू थिंग विल हैपन. आइदर P, द वैल्यू ऑफ P विल बी रिप्लेस्ड विद I. मीन्स लूप खत्म होने के बाद दो बातें होंगी. या तो P के अंदर I आ जाएगा, वरना P के अंदर -1 का -1 ही रहेगा. P के अंदर I कब आ जाएगा? जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसका मतलब क्या? हमें बीच में एलिमेंट जहां लगाना है उसकी पोजीशन मिल गई. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो P के अंदर हमने -1 दिया था, वो -1 का -1 रहेगा. सो आफ्टर दिस लूप वी कैन check whether the element will be appended or inserted. अगर P की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई. इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट सबसे बड़ा था, और सबसे बड़ा था इसीलिए वो पीछे अपेंड होगा. सो आफ्टर द लूप वी आर चेकिंग इफ P इक्वल टू -1.
अगर p की वैल्यू -1 है, इसका मतलब वो एलिमेंट सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है, वो एंड में जाके अपेंड होगा। एक बात ध्यान रखनी है, पीछे अपेंड होता है, बीच में इंसर्ट होता है। रिपीट करो मेरे साथ, लास्ट में अपेंड होता है और बीच में इंसर्ट होता है। लास्ट में एलिमेंट अपेंड होता है एंड इन बिटवीन एलिमेंट इज इंसर्टेड। ये ध्यान रखना है, लास्ट में एलिमेंट अपेंड होता है, बीच में इंसर्ट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो p की वैल्यू -1 है। p की वैल्यू -1 होने का मतलब क्या, वो एलिमेंट सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या, लास्ट में अपेंड होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, a डॉट अपेंड एलिमेंट, दिस एलिमेंट वी हैव अपेंडेड, a डॉट अपेंड एलिमेंट। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स, तो बीच में इंसर्ट होता है। तो हमें लिखना पड़ेगा a डॉट इंसर्ट, कहां पर, इस p पर, किसे, a डॉट इंसर्ट कहां पर, इस p पर, किसे, एलिमेंट को। इन दिस वे एलिमेंट विल बी इंसर्टेड। अगर एलिमेंट सबसे बड़ा है, अगर एलिमेंट सबसे बड़ा है तो लास्ट में अपेंड होगा, और अगर बीच में पोजीशन मालूम चल गई तो बीच में एलिमेंट इंसर्ट होगा। और आफ्टर द लूप मीन्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस print a, we are displaying the list. So in this way element can be inserted in a sorted list. Now suppose if the list is in descending order, अगर हमारी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में होती, अगर ऐसे होता 60, 50, 40, 30, 20, तो व्हाट विल हैपन, ओनली वी विल चेंज दिस। असेंडिंग में हमने क्या चेक किया है, इट इज लेस देन इक्वल टू, क्या ये एलिमेंट इस ए ऑफ आई के लेस देन इक्वल टू है। और ये अगर डिसेंडिंग होता तो हम कर देते इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ आई। सपोज लिस्ट हमारी होती 50, 40, 30, 20, 10, 5, and we have to insert the element, let us say 35. 35 इससे मीन्स ए ऑफ आई से, ये 35 ए ऑफ आई से बड़ा है, नो। इससे बड़ा है, नो। इससे बड़ा है, यस। तो दिस इज द पोजीशन। तो जब डिसेंडिंग होगा तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन राइट योर आंसर। हैव अ ग्लांस ऑन दैट। यहाँ पर स्क्रीन को पॉज कर लेना और ये आंसर कॉपी पे नोट कर लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड लिस्ट, then how it can be done? So it can be done, first you need to find out the position. After that you have to append or insert. You have to, second work is append or insert. Appending of the element will be done if the element is the largest element, means वो लिस्ट में सबसे बड़ा है तो वो अपेंड होगा, और अगर बीच में पोजीशन है तो इंसर्ट होगा। ध्यान रखना, लास्ट में एलिमेंट अपेंड होता है, मींस लिस्ट के एंड पे एलिमेंट अपेंड होता है और बीच में एलिमेंट इंसर्ट होता है। तो फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, आइदर इट इज इन द बिटवीन, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो p की वैल्यू -1। अगर p की वैल्यू -1 है, इसका मतलब एलिमेंट सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो लिस्ट में अपेंड हो गया, और अगर बीच में है तो उस पोजीशन पर इंसर्ट हो गया। थैंक यू। पॉज इट हियर।
and write the answer in your notebook. यहाँ पर नीचे बाद में वो इनपुट वाला काम सेम रहेगा जैसा हमने पहले किया था इस प्रीवियस क्वेश्चन में. मीन्स if you want to execute the entire program, then after writing the function you have to write the input statement also. Let me show you once more here. Means in this question, this is the function, and if you want to execute this function you have to write this input statement. Here I have declared a list, taken the size, taken the element of the list and called the function. Like here, this is the function, and if you want to execute this function you have to take the list. So here in this way you can enter the list and call the function. So after the combination of writing the function and writing the main program and after that calling the function, you can execute the function. Thank you.